इस वक्त हम नेवालाल चौक के पास मौजूद हैं ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल में। आने का मकसद इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पर मेला लगा है, एग्जीबिशन लगा है। वो मेला क्या है आपको हम बता दें, साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है वो भी बताएंगे। अब क्या शिक्षा दी जाती है वो तो ये जो आज साइंस एग्जीबिशन लगा है उसमें ही पता चल पाएगा कि बच्चों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। हालांकि तैयारी की बात कर ली जाए तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि बच्चे कितने शिक्षित हैं और कैसे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं। तो आइए हम उसी कड़ी में आज इस साइंस एग्जीबिशन में मौजूद है और हर जगह जाकर काउंटर पर जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों ने क्या बनाया आपने। ये कैसे काम करता है बताओ। ये सेल के अंदर पाया जाता है। ये फंक्शन होता है बस। और क्या, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो फाउंड होता है ओनली यूकैरियोटिक सेल दैट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ बॉडी एंड कंटेन डीएनए टू मैनेज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. Nucleus is important for us because it control the all activities and contain DNA which carry information from parents to their children, and it also help in cell division, development and growth of a body. Nucleus is consist of nuclear membrane, nucleoplasm, nucleus and chromatin thread. Nuclear membrane is also known as the karyoteca, and it is two-layer envelope around the nucleus. It also separates nucleus from cytoplasm. Its main function is it protect the nucleus and it control the movement of a material. Second, we are talking about nucleoplasm. This nucleoplasm. Nucleoplasm is also known as a nucleosep. It is semi-fluid, transparent liquid present inside the nucleus, and its main function is it help in the transport of material, and it support the chromosome and nucleus. And third, we are talking about nucleus. Nucleus is dense, dark structure present inside the nucleus, and its main function is it help in the making of ribosome. And fourth, we are talking about chromatin thread. From this side and explain better. ठीक है, अच्छा बता रही हैं। Chromatin thread. It is a thread-like structure present in the nucleus. Its main function is they carry genetic information, and during the cell division they constitute to form a chromosome. And this is RER and SER. They both are the types of endoplasmic reticulum. And RER attach with ribosome on its surface, and it carry protein. And SER without ribosome and smooth endoplasmic reticulum. It help in the manufacturing of fat and lipid, and it also play a very critical role in detoxifying many poisons and drugs. पूरा याद की हुई है, क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ रही है आप? I am Varsha, student of class 9th. देखिए वर्षा है, क्लास 9th की स्टूडेंट है और जैसा आप इंग्लिश भी सुन रही थी लग रहा है कि पढ़ाइयाँ होती है और बेहतरीन यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। देखिए आगे का मॉडल कुछ और है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नज़र आ रहा है। और पहले आप इस पेन करें, नाम बताएं। Sir, I am Adarsh from class 9th. This is our model of pollution. Here you can see that there are three types of pollution. First is air pollution, second is noise pollution, and third is water pollution. Air pollution is caused by industries waste, smokes, vehicles smokes, and second one is water pollution. Water pollution is caused by water waste in rivers and makes water unsafe. Third one is noise pollution. Noise pollution is created by loud sound that produced from vehicles and loudspeakers that affects our health very badly. And in our model we are mainly focusing on water pollution and air pollution. Now my friend Sheetal will continue. और बहुत सारे मॉडल नज़र आएंगे। चलिए ऐसे तो बहुत सारा है, चलिए ये भी बताएंगे क्या है, किन्होंने बनाया है ये? आपने बनाया है? क्या है बताइए। Myself Munaisha from class 9, and this is the structure of neurons. It is the basic unit of our neurons nervous system. So the parts are dendrites, cell body, which is also known as soma, nucleus, axon, and axon terminate, which is is also called the nerve ending. चलिए आप जो स्किन के पास रहता है। यस, क्या ये जो लाइट्स जो जल रही हैं जो ये सर चूँकि नर्वस सिस्टम का जो कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट वो है न्यूरॉन, जिसका दूसरा नाम नर्व सेल भी है। ये बेसिकली हमारे शरीर में पूरी जाल की तरह बिछा हुआ है। इनका काम है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह करना। जैसे ये हमारे स्किन के पास रहता है डेंड्राइट्स, इनको इन्फॉर्मेशन जैसे मिलेगी तो वो इम्पल्स जनरेट करेगा। वो इम्पल्स सीधा आते जाते हुए एक्सोन होते हुए नर्व एंडिंग सेल तक पहुंच जाता है। दूसरा न्यूरॉन इसके जस्ट नीचे रहता है, जहां से इन्फॉर्मेशन केमिकल मैसेंजर के रूप में दूसरे को मिलेगा। यह पूरा चक्र चलता रहता है। क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी, नर्व से सेंसरी है और मोटर है।
दोनों का काम है ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाना, क्या ब्रेन डिसीजन लिया, फिर वहाँ से इफेक्टेड ऑर्गन तक जाएगा। ये सारा काम इसके द्वारा होते रहता है। ये आपको कंपोनेंट जो है, जैसे सारा स्विच ऑफ कर रहे हैं तो ये डेंड्राइट्स अपना काम किया, इम्पल्स जनरेट हो गया है, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई है। उसके बाद एक्सोन के उसके बाद न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। फिर एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन होते हुए फिर एक्सोन टर्मिनल तक आता है। फिर यहाँ से केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होगा जो दूसरे न्यूरॉन के पास चला जाएगा इन्फॉर्मेशन, फिर ये पूरे बॉडी में ट्रेवल होता है। चलिए, जैसा देख रहे हैं इस एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक मतलब मॉडल नज़र आ रहे हैं। सबसे बेहतरीन क्या है? सबने तो एक से बढ़कर एक किया है। सर, अगर बर्निंग टॉपिक पे देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि भविष्य भी हमारा अच्छी तरीके से, जैसे एक यहाँ सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका थीम है कि हम भविष्य को भी ध्यान में रखें। जैसे अगर हम कोल बर्न कर रहे हैं तो कोल आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, तो हम उसका अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेस इस्तेमाल करेंगे। जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, थर्मल एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, जो थर्मल एनर्जी हुआ, ये जितने एनर्जी हैं वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर फिर उसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं हम। जैसे ये सिंपल सा सिटी है, सिटी में सारा चीज़ उपलब्ध है, लेकिन पेड़ भी है, तो पेड़ कहीं ना कहीं दो चीज़ कर रहा है, वाटर लेवल मेंटेन कर रहा है, एयर ऑक्सीजन देगा, प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट डेवलप हो रहा है, रोड बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन हम इन्वायरमेंट को भी देखते हुए तब डेवलपमेंट करेंगे, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इधर भी देख रहे हैं कुछ बच्चे बनाए हैं, क्या है हाँ, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है सर, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। बताओ, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आप Okay, sir. It is an excretory system which is present in the human body. So it consists of a pair of kidneys, a pair of ureter, one urinary bladder, and one urethra. The most crucial part of this project is the kidney because it is the site where the blood gets filtered, and then the filtered blood gets passed through this ureter pipe. Then it goes to the urinary bladder. Until the urinary bladder is filled, it gets deposited there. Once it gets filled, then it gets released through the urethra out of the body. So this project shows the excretory system which is present in our human body. It helps in three things. It helps to maintain the salt level present in the blood. Second, it detoxifies all the impurities that are present in the blood, so we cannot get any hazardous issue. Third, it also prevents some hazardous issues like kidney stones, kidney disease, infection, and many more. Thank you, sir. चलिए, तो देखिए किस तरह जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं किस तरह जवाब भी दे रहे हैं। खुद ने मॉडल बनाया है, साथ में शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा मिलकर। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, आप छोटे छोटे बच्चों के दिखाएं कि क्या बनाया। चलो आप बताओगे क्या बनाया। सीजन सीजन है, कैसे कैसे सीजन? अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी समर समर चल रहा है। समर का कौन सा आप बताओ घुमा के। चलिए, समर आ गया, उसके बाद फिर कौन सा आता है? समर के बाद रेनी रेनी सीजन आता है, बरसात का। उसके बाद ऑटम ऑटम आ जाता है। उसके बाद विंटर आ जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। ये क्या बनाया आपने? सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट, अलग अलग टेस्ट, मतलब जीभ पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, कहाँ स्वीट होते हैं, कहाँ खट्टी होती है, कहाँ मीठी होती है, वो बताया। कौन बताया आपको इसका? सर, यस सर। बुक में लिखा हुआ होगा? यस सर। मगर आपने ये प्रैक्टिकल किया? यस सर। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? यस सर। चलिए और भी देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बनाया क्लास 2 के बच्चों ने। उनसे पूछते हैं क्या बनाया आपने, क्या बताना चाह रहे हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में बताइए। Good morning, good afternoon everyone. Today I am presenting the solar system. The sun is centered and all planets revolve around it. ऐसे आप कर लो, सन। Yes. बताइए। Good afternoon everyone. Today I am presenting the solar system. The sun is centered and all planets revolve around it. अच्छा, around ये कौन सा है? Saturn. सैटर्न है। हाँ. और ये Mars. मार्स है। और ये आगे में कौन है सबसे? Mercury. मरकुरी है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे भी बच्चे से पूछते हैं क्या ये क्या बनाया आपने? Save Earth, save water. वाह, क्या होगा इससे, क्या मैसेज जाएगा आप बताओ। Good afternoon everyone. This is my model is save Earth, save water. चलिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है बच्चों के। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चों से भी मिलाया, छोटे बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा थ्योरी
के माध्यम से बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल किस तरह उतार रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश। क्या बनाया आपने ये क्लास 3rd के बच्चे हैं और क्या प्रेजेंटेशन देंगे बताइए। A city has a आप बताओ। good afternoon. Good afternoon, everyone. Today I am presenting city and village. कुछ व्यंजन नज़र आ रहा है इधर, चाउमीन, बर्गर। चलिए पूछते हैं हेल्दी अनहेल्दी के बारे में। कौन बताएंगे? आप बताएंगे। Good morning, afternoon. अच्छा ठीक। Good morning, everyone. Today I am presenting healthy food and unhealthy food. अच्छा, हेल्दी फूड कौन सा है बताएं। Healthy food. बताइए कौन है, क्या क्या नाम है? Sir, सेब, सेब है और क्या है? केला, केला है और स्ट्रॉबेरी, अच्छा, अनहेल्दी के विषय में बताएं। बर्गर, पिज्ज़ा, कैंडी, नूडल्स. क्या खाते हैं ज़्यादा, हेल्दी या अनहेल्दी? सर हेल्दी. हेल्दी खाते हैं ना। और भी बच्चे लोग को क्या बोलेंगे? हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी खाना चाहिए. हेल्दी खाना चाहिए। देखिए हेल्दी अनहेल्दी क्या खाना होता है, बच्चों ने किस तरह बताने की कोशिश की। एक बच्चे छूट गई थी और बोलना चाह रही कि बोलने, क्या बोलना चाह रहे बताओ। A village has fewer buildings, clean environment, and people mostly do farming. Both city and village are important for our country. Thank you. चलिए बहुत ही अच्छा। City has a tall building, better transport and many facilities like school and hospital. थैंक यू। चलिए आप देखिए इधर भी बच्चों का देखिए किस तरह लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि आज जो साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, अभिभावक भी आके देख रहे हैं, पेरेंट्स और साथ में शिक्षक शिक्षिकाएं तो मौजूद हैं ही। देखिए इधर भी और बहुत सारे अलग अलग चीज़ मॉडल बनाए हुए हैं। क्लास 3 के बच्चे कौन बताएंगे कि आप क्या बनाए हैं ये जी। देखिए यहाँ पर दिखाने की क्या कोशिश की गई है। आगे एक ऊपर वाले बोतल में मतलब ग्लास में जार में रखा हुआ है, पत्थर है, उसके बाद कंक्रीट है, बालू है, फिर रुई है, फिर नीचे पानी है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं उनसे पूछते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका आप बताओ कैसे। सर ये इसमें अगर डटी वाटर डालेंगे तो ये इसमें जाकर फिर इससे साफ पानी निकल जाएगा। कर सकते हो ऐसा? यस सर। डटी है पानी। अच्छा, मगर ये संदेश जो देना चाह रहे थे कि जो खराब पानी होता है उसको कैसे शुद्धिकरण करके ये इस लास्ट वाले जार में गिलास में रखा जाता है, वो बताने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही अच्छी प्रयास है। देखिए अभी कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें गिलास में फाइनल साफ पानी आ रहा है। अच्छा, ये लोग भी क्लास 4 के बच्चे हैं सर। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। बताओ क्या बनाया। वाटर साइकिल. बताओ कैसे। व्हाट इज वाटर साइकिल? Water cycle is a process by which water moves around the earth. चलो बहुत ही अच्छा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्लास 4 में क्या बनाए हैं आप? अरे ये तो घूमने लगा, क्या है ये? बताओ। My model is a windmill. The windmill is used to generate electricity. अच्छा, ये पंखे घूम रहा है और लाइट भी जल रही है, बिना बैटरी से, बिना करंट से। एक बार फिर से रोक के बताओ। देखिए किस तरह पवन चक्की घूमती है और किस तरह लाइट जनरेट होती है, मतलब बिजली, वो दिखाने का प्रयास आप करो। देखिए किस तरह पवन चक्की घूम रही है हवा में, फैन, और देखिए किस तरह बिजली जनरेट हो रहा है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं और किस तरह जल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि आज के संसाधन जो कमी हो रही है उसको कैसे इलेक्ट्रिक जो है आगे हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, और परिवर्तनशील है। और छोटे छोटे बच्चे ने ये प्रयास किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी। चलिए आपने क्या बनाया आप बताओ। सोलर सिस्टम. कैसे काम करता है? Solar system is consist of planet, the sun, and other bodies. This is Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. There are 8 planets in solar system. बहुत ही बढ़िया। Thank you. चलिए इधर चलते हैं। इधर देखिए क्या बनाया आपने?
plant, when sunlight falls on leaf, chlorophyll inside the plant leaf absorbs the sunlight, and the root absorbs water and mineral from the soil, and the plant absorbs carbon dioxide for making food. चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए किस तरह भूकंप जब आती है और किस तरह जो ये नज़र है ज्वालामुखी जब फिर फटता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए अब यहाँ पे कई पेरेंट्स भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी वर्तमान में कई पेरेंट्स देख भी रहे हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? निश्चय ही यह हमारे ऊर्जावान बच्चों के भविष्य के लिए, इसके उज्ज्वलतम भविष्य की जो परिकल्पना को साकार करने के लिए सर ने किया है, यह समाज को एक सही दिशा निर्देश देगा और बच्चों को आगे बढ़ने में प्रेरणादायक होगा। प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी में कितनी आवश्यकता है? थ्योरी तो सब पढ़ते हैं मगर प्रैक्टिकल कम ही जगह पढ़ाया जाता है, तो कितनी आवश्यकता है? जितना आवश्यक हमें थ्योरी के बारे में नॉलेज लेना है उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल आवश्यक होता है। बहुत बार आप देखते होंगे कि मैकेनिज़्म के फील्ड में बहुत बार आपने ऐसा पाया होगा कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिक आपके जीवन में मिले होंगे जिनके पास थ्योरेटिकली कोई नॉलेज नहीं, लेकिन वो बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से आपके किस गाड़ी को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, जबकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं हुआ, बिल्कुल इलिटरेट पर्सन होते हैं। इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भूमिका बहुत अहम है और जो लोग प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से वह थ्योरी को बहुत गहराई पूर्वक समझ पा रहे हैं। इस बार जो साइंस एग्जीबिशन बच्चे के द्वारा लगवाए हैं और उसका जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा, ये काबिले तारीफ़ है। हम तो यही कहेंगे, जैसे महाभारत काल में जब खांडव वन मिला था पांडव को ये करने के लिए, उसको भी उन्होंने स्वर्ग की तरह बनाया, तो उसी तरह यहाँ के जितने टीचर्स और इतने स्टूडेंट के पेरेंट्स और हम सबों का सहयोग रहेगा तो एक न एक दिन ये स्कूल का दिन दुनी रात चौगुनी, और इस स्कूल का नाम ही है ग्लोबल में इसका दर्ज होगा और स्वर्णिम विकास होगा और सब बच्चे और के लिए उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। यहाँ के जितने भी टीचर्स मेल फीमेल सबों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतने बच्चों की इतने गर्मी के मौसम में भी आप लोगों ने रह करके और अच्छे से प्रेजेंटेशन किया और एग्जीबिशन का यहाँ जो प्रोग्राम रहा बहुत ही अच्छा रहा। किस तरह यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगाया, बच्चों को किस तरह शिक्षा दीक्षा दी जा रही है? सर, यहाँ पे हम लोग जो बच्चों को थ्योरी में सिखाते हैं उसी चीज़ को हम लोगों ने बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाने की कोशिश की है, जो भी अभी आप लोगों ने देखा। कितने दिनों से प्रैक्टिस करा रहे थे? सर, ये तो बच्चों ने बहुत ही कम समय में तैयार किया है, लगभग 1 वीक से भी कम समय में। एग्जाम का समय? एग्ज़ाम के बाद ये बच्चों ने एग्जीबिशन की तैयारी की है। आप क्या कहेंगे? बच्चे सब जो है प्रैक्टिकल के थ्रू जो है हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से सीख पाए, इसलिए एग्ज़ाम के बाद थोड़ा इन्वॉल्व भी रह सके, तो इसलिए हम लोगों ने जो है ये प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन में जो है इन लोगों को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, और कल हम लोग का जो है यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट भी होना है जिसमें कि बच्चे सब काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं। आप कुछ कहना चाहिए? ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल ये 2026 का जो साइंस एग्जीबिशन लगाया है, इसमें हमारे बच्चों का अथक प्रयास हुआ है और बहुत सारे प्रयास के बावजूद कई दिनों से इन लोगों ने मेहनत करके ये एग्जीबिशन का काम किया है। जितना साल भर में बच्चों को प्रैक्टिकल कराया गया स्कूल में, उन सारे चीज़ों को बच्चों ने उतारने का प्रयास किया। चलिए अब हमारे निदेशक मौजूद हैं ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल के, चंदन सर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे अभी जो आयोजन किया है? बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली उतारना एक अच्छा अनुभव है ना, और बच्चों ने किया है। बहुत अच्छा प्रयास हमें तो नज़र आ रहा है कि बच्चे शिक्षक जो क्लास में उनको पढ़ाए हैं, बुक में जो पढ़ाई हुई है उनकी सालों भर, उस चीज़ को वो क्या कहता है उतारने का प्रयास किए हैं।
अपने प्रदर्शनी के द्वारा। अभी बताइए कि यहाँ पर जो है शैक्षणिक जो है बच्चों की शिक्षा कहाँ से कहाँ तक कराई जाती है, क्या व्यवस्था? हमारे विद्यालय में प्ले टू 10th की क्लासेस चलती हैं। हमारा स्कूल प्ले टू 10th का स्कूल है और हर एक क्लास में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने का हमारा प्रयास है और किफ़ायती दरों में कह सकते हैं, आज के महंगाई दर में, महंगाई के कंडीशन में, है ना, हमारा प्रयास है कि हम इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम फ़ी में अच्छा शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकें। तो ये हमारे साथ मौजूद थे चंदर सर, जो ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल के निदेशक थे और तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह यहाँ पर छात्र छात्राओं के द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज जो है साइंस एग्जीबिशन लगाया गया और इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। बीच बीच में स्कूल में हर तरह के मूवमेंट्स कराए जाते हैं। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।